Hello friends, my name is Preet Shah. I'm a faculty member of Navkar Institute, and today I'm going to give you some preparation and exam tips for US Certified Public Accountants examinations, that is US CPA. Before starting with this exam tips, I want to show you some important documentation that you all should definitely see and should download it yourself. See, if you can see on the screen, this is a uniform CPA examination blueprint, okay, which is prepared by AICPA itself, okay, and this gives in-depth analysis of every single topic, every single chapter in every single subject of AICPA, that is CPA examinations. First one is auditing and assurance. The first one is auditing and assurance. We have a section introduction. A summary blueprint. Then there will be area 1, 2, 3, 4. And if you are a US CPA student, you know that in audit and assurance, auditing and attestation, we have 4 different units. All right. Second one is BEC, business environment and concepts. We have 5 different areas. So same case, section introduction, summary blueprint, and the complete detailed analysis of all the 5 areas, that is corporate governance, economic concept and analysis, financial management, information technology and operations management. Then the third one comes FAR, that is financial accounting and reporting. We have the same thing, that is section introduction, summary blueprint. Then there are again 4 areas. Area number 1, that is conceptual framework, standard setting and financial reporting. Area number 2 is about the select financial statement accounts. Area number 3 is about select transactions, specific transactions. And area number 4 is about the state and local government. And lastly is about reg, that is regulations. Regulation, again we have section introduction, summary blueprint, and 5 different areas: ethics, professional responsibilities and federal tax procedures, business law, federal taxation of property transactions, federal taxations of individuals, and federal taxations of entities, right? So for every subject you have in detail in this blueprint, which can be easily accessed from the AICPA website. All you have to do is type in Google AICPA blueprint, latest blueprint. Obviously it will come, the latest blueprint will only come, and this is what you will get. Okay, all right, चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सीपीए एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट में क्या थोड़ा एनालिसिस जो स्टार्टिंग के पेजेस में है वो, और उसके बाद हम प्रिपरेशन एंड एग्जाम टिप्स के बारे में पढ़ेंगे. I am going to give you 10 important tips जो तुम्हारे प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी. यूनिफॉर्म सीपीए एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट में एज यू नो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स है: ऑडिट, बीसी, फार एंड रेग. चारों सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन टाइमिंग्स है 4 आवर्स ईच. हर एक पेपर लिया जाएगा 4 घंटे का. मुझे पासिंग मार्क्स बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो पासिंग मार्क्स 75%, खैर मैंने बता ही दिया, बट इट इज 75% एंड ये लाने कंपलसरी है. पासिंग मार्क्स है. एंड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. इस तरह से यहां पे बाइफिकेशन दे दिया है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस है. एंड बीसी वाले सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस के अलावा रिटन कम्युनिकेशंस भी दिया जाएगा. ठीक है, 15 मार्क्स का जो हमारा है वो रिटन कम्युनिकेशंस है. ठीक है, 15 मार्क्स का रिटन कम्युनिकेशन है. ये स्कोर वेटेज जो है वो यहां पे दिया हुआ है. देखो, ऑडिट में 50% वेटेज दिया जाता है, एमसीक्यूज को 50% वेटेज दिया जाता है, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस. द सेम इज द केस विद फार एंड रेग ऑल्सो. 50% वेटेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दिया जाता है, 50% वेटेज टास्क बेस्ड सिमुलेशंस को दिया जाता है. बट बीसी के अंदर 50% वेटेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दिया जाता है, 35% वेटेज टास्क बेस्ड सिमुलेशंस को दिया जाता है, एंड 15% वेटेज रिटन कम्युनिकेशंस को दिया जाता है. I don't have to explain what is task-based simulations, but for those people who do not know what is task-based simulations, task-based simulations it's kind of a case study-based questions. ठीक है, you will be given some kind of situation or circumstances or a case. Based on that, different questions will be asked and different circumstances will be given. You have to choose the right answer for that. Okay, so that is a score weightage. यहाँ पे multiple choice questions कितने हैं ये बता दिया गया. अच्छा, शुरू करने के लिए एआईसीपीए किसी भी कैंडिडेट से 4 स्किल लेवल के एक्सपेक्टेशंस करता है. एआईसीपीए किसी भी कैंडिडेट से, मैं रिपीट कर रहा हूं, एआईसीपीए किसी भी कैंडिडेट से 4 स्किल लेवल्स की एक्सपेक्टेशन करता है. द फर्स्ट वन इज इवैल्यूएशन. द फर्स्ट वन इज इवैल्यूएशन. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच इज नीडेड बिकॉज इसका इंक्लूजन जो है वो कम पूछा जाता है, स्टिल पूछा जाता है. इवैल्यूएशन का मतलब
प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना है, अपना जजमेंट यूज करना है और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम को एग्जामिन करो, अपना जजमेंट यूज करो, एक कंक्लूजन ड्रॉ करो, इवैल्यूएट करो उस सिचुएशन को, दैट इज इवैल्यूएशन। द सेकंड स्किल लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सेपरेट एरिया। एनालाइज करेंगे, दो सेपरेट एरियाज को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के बेसिस पे अगेन हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ कंक्लूजन्स। और किस बेसिस पे हमने ड्रॉ किया है कंक्लूजन्स, ऐसे कॉजेज आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, दैट इज एनालिसिस। एप्लीकेशन, यानी हमने ऑलरेडी जो नॉलेज इकट्ठी कर ली, उस नॉलेज को अप्लाई करके हमें क्या करना है, आंसर देना है, दैट इज द यूज और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट्स और टेक्निक्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सर ये तो हम करते ही आ रहे हैं पहले से, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने टेक्निकलिटीज है, इन सबको हमें रिमेंबर करना है, अंडरस्टैंड करना है, और जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं या जो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस पूछे गए उसे आंसर करना है बेस्ड ऑन आवर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो ये 4 स्किल लेवल्स होते हैं, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां पे अगर आप देखो तो हर एक ये बहुत समराइज्ड वे के अंदर दे दिया, यहां पे एकदम स्टार्टिंग में समराइज्ड वे के अंदर दिया हुआ है। इसका डिटेल्ड फॉर्मेट आपको पूरे ब्लूप्रिंट में मिलेगा। सो दिस इज 102 पेजेस ब्लूप्रिंट, ओके, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो या अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आप एग्जाम देने जाने चाहते हो, तो एग्जाम देने जाने से पहले या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्मार्ट वर्क सबको पता है, इफ यू want to give CPA examinations, you should know that smart work is the key to success. आज स्मार्ट वर्क करने के लिए अगर हमें ये 102 पेजेस एक बार देखने पड़ जाए ना, तो हम देखेंगे जरूर इसको, क्योंकि पूरी तरह से एनालिसिस इसके अंदर हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां पे फिर भी एक समराइज्ड एनालिसिस हम देख लेते हैं। ऑडिट के अंदर स्किल्स कैसे यूज करे जाएंगे। 30 to 40% जो है वो तुम्हारे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, कि कितना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें याद रहते हैं, उस स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, रिगार्डिंग प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। ये रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो 30 to 40% कंप्राइज करता है। बाकी 30 to 40% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड है, जो कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे अप्लाई करना है। अच्छा, 15 to 25% एनालिसिस बेस्ड है और 5 to 15% इवैल्यूएशन बेस्ड है। ठीक है, ये एनालिसिस और इवैल्यूएशन ज्यादातर टास्क बेस्ड सिमुलेशंस में पूछे जाते हैं। बीसी के अंदर अगेन 15 to 25% रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है। 15 to 25% ही रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है, बिकॉज अगर आपने बीसी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यहां पे ज्यादातर हमें एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वो नॉलेज जो आपने ली है उस नॉलेज को वहां पे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड 50 to 60% है, जिसमें बीईसी के अंदर हमें पता है रिटन कम्युनिकेशन आता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का रिटन कम्युनिकेशन आता है, वो 15 मार्क्स का रिटन कम्युनिकेशन इसी एप्लीकेशन बेस्ड के अंदर इंक्लूडेड है। और बाकी 20 to 30% एनालिसिस बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे पोर्शन बीसी के अंदर कुछ पोर्शंस है और तुम लोगों को अच्छे से पता है कि बीसी के अंदर कौन से पोर्शंस है जो एनालिटिकल बेसिस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फार के अंदर 10 to 20% ही है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर, उसके अंदर ज्यादातर याद करने वाला नहीं है, बट अगेन यहाँ पे ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर यही अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अप्लाई करना है हमारा नॉलेज की ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हमारा आंसर होना चाहिए। 25 to 35% एनालिसिस बेस्ड होगा और रेक के अंदर 25 to 35% रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, 35 to 45% एप्लीकेशन बेस्ड है और 25 to 35% एनालिसिस है। यानी यहां पे ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द 3 स्किल लेवल्स, दैट इज रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। इस तरह से अब यहां पे सोचना है कि हमें कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। आज मान लो अगर तुम ऑडिट पढ़ने जा रहे हो, so in what area will you focus upon? You will focus upon remembering and understanding, because हमें पता है कि सर 30 to 40% हमारा remembering and understanding पे पूछा जाता है। अगर बीसी या फार पढ़ने जा रहे हैं तो हम ज्यादातर फोकस एमसीक्यू के ऊपर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि सर 50 to 60% एप्लीकेशन बेस्ड है और अगर हमने एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करी तो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड जो स्किल्स है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे हमें ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि सीपीए एग्जामिनेशन से पहले अगर हमें स्मार्ट वर्क करना है तो ये एनालिसिस करना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट। यहां से अगर आप ब्लूप्रिंट आगे देखना चाहो, यहां पे तक मैंने समरी बता दी थी, आगे अगर ब्लूप्रिंट देखना चाहो तो एक एक करके ऑडिटिंग अटेस्टेशन देखिए क्या है। ऑडिटिंग अटेस्टेशन में यहां पे पूरा ओवरव्यू दिया गया है, एक एक यूनिट के बारे में दिया हुआ है, एक यूनिट के बारे में दिया हुआ है, स्किल लेवल्स के बारे में आगे दिया हुआ है और यहां पे एक समराइज्ड भी आएगा, समरी ब्लूप्रिंट भी आएगा कि यूनिट नंबर 1 का कितना वेटेज है।
यूनिट नंबर 2 का कितना वेटेज है, यूनिट नंबर 3 का कितना वेटेज है और यूनिट नंबर 4 का कितना वेटेज है। अच्छा, स्किल वाइज देखना है तो इवैल्यूएशन एनालिसिस ये हम ऑलरेडी समरी में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज बहुत जरूरी है कि कंटेंट एरिया एलोकेशन, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी यूनिट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसी तरह से जैसा यहाँ पे ऑडिट में कंटेंट एरिया एलोकेशन दिया हुआ है, वैसे ही बीसी के अंदर दिया हुआ है, वैसे ही फार के अंदर दिया है और वैसे ही रेक के अंदर दिया है। सो माई एडवाइस टू यू विल बी कि इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करो और इसे एक बार एक नजर इस ब्लूप्रिंट पे डालना ही है हमें। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम टिप्स की तरफ। स्टार्टिंग विद दी सीपीए एग्जाम टिप्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि सीक्वेंस फॉर स्टडिंग क्या रहेगा, पढ़ाई करने की सीक्वेंस क्या रहेगी, किस तरह से पढ़ाया जाएगा। इफ यू आर अ नवकार स्टूडेंट, आपको वाइली का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। वाइली के सॉफ्टवेयर के अंदर स्टडी गाइड होगा जिसके अंदर पूरा टेक्स्ट मटेरियल होगा। इसके अलावा असेसमेंट दिया जाएगा। असेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। असेसमेंट के क्वेश्चंस के अलावा मेजॉरिटी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो टेस्ट बैंक के अंदर पूछे जाएंगे और उसके अलावा भी टीबीएस अलग से दिया जाएगा। इन चारों का सीक्वेंस किस तरह से होगा, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, ये हम देखेंगे। नॉट ओनली दैट, नवकार इंस्टीट्यूट के अंदर यू विल ऑल्सो गेट नवकार रिकॉर्डेड मटीरियल, नवकार रिकॉर्डेड वीडियोस एंड इट्स ओन मटीरियल एज वेल, जो काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आपने अगर वो वीडियो लेक्चर देखे जिसके अंदर डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेनेशन स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जिस तरह से डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस तरह से हम यहां पे देखेंगे। क्लियर? ऑलराइट, सो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस फॉर स्टडिंग। सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे स्टडी गाइड के साथ। सबसे पहले की शुरुआत हमारी होगी स्टडी गाइड के साथ। स्टडी गाइड के अंदर जहां पे हमारा मेन मटेरियल, मेन कंटेंट दिया होता है, दैट इज अ स्टडी गाइड। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये जो स्टडी गाइड है इसमें रट्टा नहीं मारना है हमें। Let me tell you this, whether you are a chartered accountant student, whether you are a graduate, whether you are a postgraduate, this is US CPA examinations. They do not expect rote learning. यहां पे रट्टा नहीं मारा जाता. They expect you to understand the concept and analyze the questions, apply your knowledge. अभी हमने 4 स्किल लेवल्स देखे। 4 स्किल लेवल्स में से सिर्फ एक स्किल लेवल में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो यहां पे फोकस वहां पे अगेन है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्टडी गाइड है उसमें जितने भी कंसेप्ट्स है वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने अपने मटीरियल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया या फिर अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो उसे मार्क नहीं किया, तो फिर ट्रस्ट मी जब रिवीजन करने का टाइम आएगा या जब सेल्फ स्टडी करने का टाइम आएगा तब बहुत दिक्कत आ सकती है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि स्टडी गाइड जब हम लेके बैठे हमें अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को एंड वी हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं वेदर यू आर अटेंडिंग नवकार लेक्चर्स, यानी नवकार के लेक्चर्स जो वीकेंड में भी होते हैं, वीकडेज में भी होते हैं। वीकेंड में यूजुअली वो प्रोफेशनल्स के लिए लिए जाते हैं लेक्चर्स जो वर्किंग मतलब जो जॉब के अंदर है, और वीकडेज में भी लिए जाते हैं लेक्चर्स। सो वेदर यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स वीकडेज और वीकेंड्स, या फिर अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, नो मैटर जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वक्त आप स्टडी गाइड पहली बार पढ़ रहे हो, जब आप समझ रहे हो, तब आपको साथ में बाइट साइज्ड नोट्स बनानी है। अपनी खुद की नोट्स बनाइए, एक नोटबुक बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि हम सीपीए दे रहे हैं तो फिर हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपने डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट के अंदर नोट्स बनाए होंगे। इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन, अगेन ग्रेजुएशन के अंदर आपने आईएमपीज और ये सारी चीजें मार्क करी होगी। सो जैसा कि हम यहाँ के इंडियन कोर्सेज के लिए करते हैं, दिस इज एन इंटरनेशनल डिग्री, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। यू हैव टू मेक बाइट साइज्ड नोट्स, बिकॉज जो कंटेंट है वो एक एग्जामिनेशन का वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंटेंट है, उसे छोटे छोटे कंटेंट्स में बाइट साइज्ड नोट्स के अंदर हमें बनाना है, ताकि जब भी रिवीजन करना हो ना, ये नोट्स इंपॉर्टेंट आ सके। अच्छा, इन नोट्स के अंदर एक भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है पढ़ाई करते समय ही, अगर ऐसा कोई भी पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर आ सकता है किसी भी तरह से, तो उसे आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करिए। चार्ट्स बनाइए फॉर बेटर प्रिपरेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आप क्या करिए, बाइट साइज नोट्स के अलावा चार्ट्स बनाइए,
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके ब्रेन के अंदर स्टिक हो जाएगा। एंड ये चार्ट्स बनाने से यही चीज होगी कि अगर आपको कोई चीज समझने में, याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, आप चार्ट के फॉर्मेट में बना दीजिए उसको, पॉइंट्स के फॉर्मेट में बनाइए, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में बनाइए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए नोट्स को, डज नॉट मैटर, बट नोट्स बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते ये चीज और वो लोग नोट्स बनाते नहीं है। ठीक है सर, मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर ही रहे हैं तो नोट्स बनाने की अलग से जरूरत है? यस, बिल्कुल जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना अलग चीज है, नोट्स में जैसे मैंने कहा आप अपने हिसाब से चार्ट्स बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो ना और आप अपनी हैंडराइटिंग में पढ़ोगे तो वो चीज याद करने में हमें आसानी रह सकती है। थर्ड, रीडिंग ऑफ स्टडी मटेरियल ट्वाइस बिफोर द एग्जाम इज अ मस्ट। स्टडी मटेरियल को एग्जाम से पहले एक बार अपने लेक्चर्स देख लिए या वीडियोस देख लिए, नवकार के रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए या लाइव लेक्चर्स अटेंड कर लिए, उसके बाद भी बिफोर गिविंग योर एग्जामिनेशंस आपको अपना स्टडी मटेरियल एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार स्टडी मटेरियल पढ़ना जरूरी है। ये स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए टिप दे रहा हूं मैं कि 2 बार स्टडी मटेरियल पढ़ना जरूरी है। All right. So that's the first one, that is study guide. Second one is assessment. Second one is assessment के questions. जितने भी assessment के MCQs हैं, एक बार study guide हमने पढ़ ली फर्स्ट टाइम, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख ली, स्टडी गाइड के साथ साथ हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख ली, हमने कंसेप्ट समझ लिया, हमने लेक्चर समझ में आ चुका है। अब हम असेसमेंट करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम असेसमेंट करेंगे। अच्छा, असेसमेंट के बाद आता है टेस्ट बैंक। कब करना है टेस्ट बैंक, ये ध्यान से सुनना। टेस्ट बैंक कब करना है? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, असेसमेंट के बाद टेस्ट बैंक कर लेते हैं। दिस शुड नॉट बी डन। टेस्ट बैंक हमेशा कलेक्टिवली किया जाना चाहिए। कलेक्टिवली क्यों? आज बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई डील विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में एक ऐसा चैप्टर आ गया, मान लो एनालिटिकल प्रोसीजर का एक चैप्टर आ गया। एनालिटिकल प्रोसीजर में पूछा जाए कि विच इज द प्रोसीजर दैट द ऑडिटर शुड अप्लाई टू एनालाइज 2 सेट्स ऑफ डेटा और टू एनालाइज द प्लॉजिबल रिलेशनशिप, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया। अब हमें पता है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर का चैप्टर कर रहे हैं, इसके अंदर चारों ऑप्शन में से ऑब्वियस ही बात है कि एनालिटिकल प्रोसीजर जहां लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होने वाला है। बिकॉज हमें हमारे माइंड में पता है कि ये तो हम चैप्टर ही एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आंसर भी तो क्या होने वाला है, एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे केसेस में आप अपने आप को सही मायनों में टेस्ट नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज वाई टेस्ट बैंक शुड बी डन कलेक्टिवली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 कंप्लीट यूनिट। पूरा का पूरा यूनिट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, वाइली के सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक यूनिट के बाद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो है ही, वो तो हम करेंगे। एग्जाम व्यू पॉइंट से असेसमेंट के लिए, एग्जाम असेसमेंट के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पर यू हैव दैट फैसिलिटी कि आप टेस्ट बैंक सबका एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइली सॉफ्टवेयर के अंदर यू हैव दैट फैसिलिटी कि आप सबका टेस्ट बैंक, पूरे यूनिट का टेस्ट बैंक एक साथ सेलेक्ट करके मिक्स एंड मैच फॉर्मेट के अंदर, मिक्स एंड मैच मतलब उसमें आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं पूछा जाएगा, मिक्स एंड मैच करके वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड दैट इज योर रियल टेस्ट। ये आपका रियल टेस्ट है। तो अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट बैंक जो है वो कलेक्टिवली करिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट। ओके, अच्छा सर, एमसीक्यू के क्वेश्चंस वाइली के सॉफ्टवेयर के अंदर यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज। डू यू थिंक एग्जाम के पहले यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल दोज एमसीक्यूज? नहीं। तो आप क्या करो, आप सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क कर दो। यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव दैट फैसिलिटी इन वाइली सॉफ्टवेयर कि आप क्वेश्चंस को फ्लैग कर सकते हो। तो आप ये क्वेश्चंस को फ्लैग कर दीजिए जिससे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्क हो सके। द थर्ड एंड द फोर्थ वन, हमारा चौथा सीक्वेंस रहेगा टीबीएस, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। जो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस है आपको हर एक यूनिट के बाद मिलेंगे। हर एक यूनिट के बाद के जो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस है वो आप प्लीज हर एक यूनिट के बाद मत करिए। जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, जितने भी यूनिट्स हैं, सबके चैप्टर्स हो जाए, सबके असेसमेंट हो जाए, सबके टेस्ट बैंक हो जाए, उसके बाद लास्ट में आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशंस लेने हैं। सारे यूनिट्स के टास्क बेस्ड सिमुलेशंस एक साथ ले लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बट टास्क बेस्ड सिमुलेशंस पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही कीजिए। यूनिट खत्म करने के बाद प्लीज टास्क बेस्ड सिमुलेशंस मत कीजिए। टास्क बेस्ड सिमुलेशंस वंस यू आर वेल इक्विप्ड विद द चैप्टर्स,
उसके बाद ही आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशंस करने हैं। और ये है हमारा सीक्वेंस। बोलिए सीक्वेंस हमारा क्या था? सबसे पहले स्टडी गाइड। स्टडी गाइड में जैसा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था कि हमें नोट्स बनाने हैं, अपनी लैंग्वेज में चार्ट्स बनाने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज असेसमेंट, जो हमें चैप्टर के बाद करना है। थर्ड इज टेस्ट बैंक, जो मैंने बोला कलेक्टिवली करना है, प्लीज हर एक चैप्टर के बाद मत करिए वरना ये टेस्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। एंड लास्ट वन इज टास्क बेस्ड सिमुलेशन, जो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद करेंगे। दैट इज माई फर्स्ट टिप टू यू कि हमारा स्टडी सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए। सेकेंड वन इज सैक्रिफाइस। You need to understand that this is an international degree. It gives you an international recognition. And for that purpose, you have to sacrifice all other vices. आपकी जितने भी distractions हैं उन सबको sacrifice कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने sacrifice नहीं किया, I'll tell you one thing. If you do not sacrifice for what you want, then what you want will become the sacrifice. सो सैक्रिफाइस, आपकी डिस्ट्रैक्शन सबको सैक्रिफाइस कीजिए। आपको पढ़ाई करनी है, जैसे ही आपने एनरोल किया है सीपीए के कोर्स के अंदर, उसी दिन से आपका सैक्रिफाइस शुरू होना चाहिए। यू हैव टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई और चीज सोचनी नहीं है। बिकॉज वंस यू गेट दिस इंटरनेशनल डिग्री, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, आपकी जो वैल्यू है वो अभी करंट स्टेज से बहुत 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 ज्यादा ऊंची हो जाएगी। सो इफ यू वॉन्ट दैट, यू हैव टू सैक्रिफाइस। थर्ड वन, द पोस्टमार्टम ऑफ टेस्ट बैंक। सिर्फ टेस्ट बैंक का नहीं, इनफैक्ट इवन असेसमेंट्स का भी। जैसे ही आपने असेसमेंट्स या टेस्ट बैंक के एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद आपको वाइली के सॉफ्टवेयर के अंदर एक एनालिसिस आएगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन का लिखा जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन में क्या गलती करी है, क्या क्या सही करें। आपने अगर गलत किया तो उसके नीचे का रीजन भी दिया जाएगा। इन योर वाइली सॉफ्टवेयर इट विल बी गिवन द रीजंस along with the option will be given that अगर वो ऑप्शन सही है तो सही क्यों है और अगर गलत है तो गलत क्यों है। जितने भी गलत, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टमार्टम, जितने भी आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद अगर आपको जितने भी मार्क्स आए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपने 50 क्वेश्चंस सही करे, तो 50 क्वेश्चंस तो ठीक है, चलो हमने सही कर दिए। हम एनालाइज करेंगे कि जो बाकी 50 क्वेश्चंस हमने गलत करे वो गलत हुए क्यों, हमारे सोचने, हमारे समझने में क्या गलती हुई है, हमारे समझने में क्या गलती हुई है, वो मार्क करके रखेंगे। दैट इज नोन एज पोस्टमार्टम ऑफ टेस्ट बैंक। ये सारे क्वेश्चंस हम मार्क करके रखेंगे। हम अपनी एक सेपरेट बुक बना देंगे अगर ऐसा लगता है तो, कि कौन से कंसेप्ट में समझने में हमें गलती हुई है, कौन से क्वेश्चंस में समझने में गलती हुई है, इसकी एक सेपरेट बुक बना दो। अगर मेहनत करनी है तो पूरी मेहनत करनी है, तो एक सेपरेट बुक बना दीजिए जिसके अंदर आपने लिख दिया कि मैंने यहां पे सबसे पहली बार जब मैं टेस्ट बैंक सॉल्व कर रहा था तब मैंने यहां पे ये गलती कर दी। नेक्स्ट, यूजिंग फ्लैश कार्ड्स फॉर रिविजन। इन वाइली सॉफ्टवेयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद फ्लैश कार्ड्स। ये फ्लैश कार्ड्स आपके रिविजन के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के लिए है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी रिविजन बहुत तेजी से इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द फिफ्थ टिप इज टू मेक ग्रुप क्विजेस। Do not underestimate the power of a group study. And अगर आप कोई प्रोफेशनल है या फिर अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, you will understand the importance कि ग्रुप स्टडी में स्टडी ही करना होता है। अच्छा, ग्रुप क्विजेस, सर आप किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप क्विजेस, जैसे हमें पता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस ये एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। व्हाट यू डू इज, अपने फ्रेंड सर्कल्स में या दूसरे जो भी सीपीए कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे मिलो। 2 लोग हो तो भी चलेगा, ग्रुप हो तो भी चलेगा, व्हाटएवर इट इज, आप उनसे मिलो और आपस में एक दूसरे को क्विज करो। कोई क्वेश्चन देख के आप उसको पूछो, आंसर आया नहीं आया, अच्छा गलत होगा आंसर, सही होगा आंसर, आपस में डिस्कस करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप यहां पे कि हम ग्रुप में बैठ के क्या कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं। रादर देन पासिंग टाइम हम क्या कर सकते हैं, ये क्विज खेल सकते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। You have a plethora of questions, plethora of MCQs in your Wiley examination, Wiley support. तो यहां पे आपको जितने MCQs चाहिए उतने MCQs आपको मिलेंगे, बट इसका सही यूटिलाइज करना, that is what matters. So make group quizzes. Next step is planning is the key.
राइट फ्रॉम व्हेन यू एनरोल फॉर सीपीए, जब आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, वहां से ही आपका प्लान बन जाना चाहिए, वहां से ही आपका शेड्यूल बन जाना चाहिए. इफ यू आर अ नवकार स्टूडेंट, और अगर आप वाइली सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो, वेदर आप डीएलपी के स्टूडेंट हो, नवकार के स्टूडेंट हो, वीकडे वाले बैचेस के स्टूडेंट हो या वीकेंड वाले बैचेस के स्टूडेंट हो, या तो आप अपने टीचर से या फिर वाइली के सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जाम शेड्यूल बहुत अच्छे से दिया जाता है कि आपको कौन से कितने टाइम में कितना कंप्लीट कर देना चाहिए. और इनफैक्ट वो वहां पे अलर्ट भी देता है कि जैसे ही अगर आप पीछे जा रहे हो, बेस्ड ऑन योर टाइमिंग, अगर आप पीछे जा रहे हो तो वहां पे अलर्ट देगा कि यू आर बिहाइंड योर कोर्स. सो आपको अपना शेड्यूल, अपना प्लान उस तरह से बनाना है स्टार्टिंग से लेके ही. अगर आपने स्टार्टिंग से प्लानिंग करना शुरू कर दिया तो आपके लिए, इवन इफ यू वांट टू गिव ऑल द 4 एग्जामिनेशंस इन वन गो, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि चारों एग्जाम एक साथ नहीं देनी चाहिए. वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. उसके लिए कोई टिप नहीं. बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप चारों एग्जाम एक साथ देना चाहते भी हो तो उसके लिए आपकी प्लानिंग जो है एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जानी चाहिए. आई अगेन रिपीट, अगर आप चारों एग्जाम एक साथ देना चाहते हो तो उसकी पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जानी चाहिए. यानी आपने जब से सीपीए की पढ़ाई शुरू करी है तब से आपकी प्लानिंग भी शुरू हो जानी चाहिए. प्लानिंग को डिवाइड कर दीजिए, किस तरह से आप पढ़ोगे, पहले दिन कितना पढ़ोगे, कैसे रिवाइज करोगे, किस तरह से असेसमेंट करोगे, कितने टाइम में आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कौन से दिन पे आपको टेस्ट बैंक सॉल्व करना है, कौन से दिन पे आपको टीबीएस सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें पहले से प्लान हो जानी चाहिए. देन फाइनल प्लान ड्यूरिंग योर एग्जाम डे. फाइनल प्लान ड्यूरिंग योर एग्जाम डे से पहले मैं एक और पॉइंट यहां पे बताना चाहता हूं विथ रिगार्ड्स टू टेस्ट बैंक. हमने सर स्टार्टिंग में ये देख लिया कि जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी गाइड है, ये हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है. पर टेस्ट बैंक में आप एक बात समझिए, जैसे ही अगर आपने टेस्ट बैंक सॉल्व किया, एक साथ टेस्ट बैंक सॉल्व किया ना, जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे ना, देयर आर हाई चांसेस कि शायद आपको पासिंग मार्क्स यानी 75 मार्क्स ना आए. प्रोबेबली कभी आपको 10% मार्क्स भी आ सकते हैं, 15% मार्क्स भी आ सकते हैं. जब पहली बार एकदम स्टडी गाइड पढ़ने के बाद, पूरा यूनिट कंप्लीट करने के बाद, जब पहली बार अगर आप टेस्ट बैंक सॉल्व करेंगे तो देयर आर चांसेस जहां आपको मार्क्स जो है वो थोड़े कम आएंगे. एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट कि देयर आर चांसेस कि आपको पहली बार में शायद 10-15% मार्क्स है या 20-25% शायद आप पास ना हो. डोंट गेट डिसहार्टन्ड ड्यू टू दैट. ऐसा होता है, पर आप वापस मेहनत करिए, वापस प्रैक्टिस करिए, वापस टेस्ट बैंक सॉल्व करो. और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको अपने अंदर एक ग्रोथ नजर आएगी. जितनी बार आप टेस्ट बैंक सॉल्व करोगे उतनी बार आपको एक ग्रोथ नजर आएगी. और चांसेस है कि शायद तीसरी बार टेस्ट बैंक सॉल्व करने के लिए मेरी एडवाइस ये रहती है कि आपको कम से कम 3 बार टेस्ट बैंक को सॉल्व कर देना चाहिए. तीसरी बार टेस्ट बैंक सॉल्व करने पे आप डेफिनेटली 70 to 80% पे पहुंच ही जाएंगे. 70 to 80% पे पहुंच ही जाएंगे. और ट्रस्ट मी, अगर आपको 80% वाइली के टेस्ट बैंक के अंदर 80% मार्क्स आ गए तो आप डेफिनेटली एआईसीपीए के एग्जामिनेशंस पास कर सकते हो. आई अगेन रिपीट, पहली बार में शायद 10-15% मार्क्स है, 20%, 25% शायद आप पास ना हो, शायद आप 75% ना ला सके. शायद अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लिया, स्टडी गाइड अच्छे से पढ़ लिया, एनालिसिस अच्छे से किया, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से एग्जाम आपने दी है, तो आ भी सकते हैं बिल्कुल. बट अगर नहीं भी आए तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड, क्योंकि ये एक बार वाली चीज नहीं है. इसे आपको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा. और तीसरी बार में आप अच्छे से अगर पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, स्टडी मटेरियल वापस पढ़ोगे, तो डेफिनेटली नोट्स वापस बनाओगे, रिवीजन वापस करोगे, तो डेफिनेटली आपको 70 to 80% आ सकते हैं. और 80% अगर आपको आ गए हैं वाइली के मटेरियल के अंदर, तो आप डेफिनेटली सीपीए के एग्जामिनेशंस जो मेन सीपीए के एग्जाम है वो पास कर सकते हैं. ऑलराइट, फाइनल प्लान ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज. आपने अपने एग्जाम के दिन पे जितना भी आपके अपने एग्जाम का आपने जो भी डेट निश्चय किया है, शायद आपने अपनी एग्जाम के पहले थोड़ा टाइम लिया होगा, 5 दिन 7 दिन, ठीक है. अज्यूमिंग आपने 5 दिन का गैप रखा है बिटवीन योर एग्जामिनेशंस. अगर आप चारों एग्जाम दे रहे हैं उस हिसाब से बोल रहा हूं. अज्यूमिंग आपने 2 एग्जाम के बीच में 5 दिन का गैप रखा है. इन 5 डेज में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट आपको अपने हिसाब से ये फाइनल प्लान बनाना है. इन 5 डेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहला, योर फोकस शुड बी ऑन स्टडी गाइड एंड द नोट्स. डू नॉट फोकस ऑन एमसीक्यूज.
यू हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज असेसमेंट के अंदर और टेस्ट बैंक के अंदर. अगर आप 5 दिन के अंदर एमसीक्यू के पीछे भागोगे तो आई एम प्रिटी श्योर यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर स्टडी मटीरियल एंड नोट्स. So instead of running behind the MCQs, yes, you can definitely mark those important MCQs और वो MCQs, important MCQs जो है वो आप कर सकते हो. But you should focus on study guide. जितना भी स्टडी गाइड है आप पूरा वापस एक बार पढ़ लीजिए. एक बार 2 बार और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर एग्जाम के पहले आप एक बार वो स्टडी गाइड वापस पढ़ लीजिए और आपने जो अपने हिसाब से जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स रिवाइज कर दीजिए. फिर डेफिनेटली अगर आपने ये कर दिया है एग्जाम के पहले, एग्जाम के जो पहले है, अगर आपने ये कर दिया तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो. एंड यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 13 आवर्स अ डे इन इस टाइम पीरियड के अंदर. 12 से 13 घंटे के अंदर जितना पढ़ सकते हो स्टडी गाइड नोट्स जितना पढ़ सकते हो वापस पढ़ते रहो, समझते रहो, याद करते रहो. इज दैट क्लियर? ओके. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप कर सकते हो तो टीबीएस भी एग्जाम के पहले सॉल्व करिएगा. ओके. द 8th टिप इज ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम. पिछले 7 टिप्स में एकदम सीक्वेंशियली मैंने आपकी स्टार्टिंग ऑफ द सीपीए प्रिपरेशन किस सीक्वेंस में होगी, आप किस तरह से प्लानिंग करोगे, आप एग्जाम के जस्ट थोड़े दिन पहले किस तरह से पढ़ाई करोगे, और अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं कि आपके पास एग्जाम के टाइम पे 4 घंटे हैं एंड यू हैव टू यूज इट वाइसली. You have 4 hours during your examination. You have to use it wisely. The first one is, and the first and the foremost and the very important one is the timely completion of paper. There are a lot many students जो एक पर्टिकुलर MCQ में या किसी टास्क बेस्ड सिमुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से they are not able to complete the paper. You have to understand that timely completion of paper is of utmost importance. आपको 4 घंटे दिए जाते हैं और एनालिसिस के मुताबिक you have 1.25 minutes, सवा मिनट है आपके पास एक MCQ करने के लिए, और एक टास्क पे सिमुलेशन के लिए आपके पास है 20 से 30 मिनट. You have 20 to 30 minutes for a task based simulation. If you study so well, if you make yourself capable so much that you can complete one MCQ in under a minute, then definitely there can be nothing that can stop you from completing the CPA paper before time with complete confidence and stress free. So timely completion of paper is of extreme importance. You have to understand that. But just because you want to complete your paper in time does not mean that the 15-minute break that is given, you don't have to sacrifice that. That 15-minute break is a must. So you have to take that 15 minutes break and freshen up yourself, because that will increase your speed. Okay. Now you have to be very aware that there are dummy questions. If you are not able to complete your paper in time, and let's say for example if you attend certain questions and there are dummy questions in between, those dummy questions won't be counted for your marking system. And if you are not able to complete the whole paper in time, there are huge chances that this dummy questions will pose a threat to your passing marks. तो ये dummy questions है, इसका ध्यान रखना है हमें, और ये dummy questions कोई भी हो सकते हैं. So don't ask कि सर dummy questions को टैकल करने का क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं. You have to answer all the questions. उसमें से कोई भी क्वेश्चन डमी क्वेश्चन हो सकता है. So ये बट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए, ताकि अगर डमी क्वेश्चंस हो भी जाए तो भी हमारे वो भी कंप्लीट हो जाए. क्लियर? एंड जैसा कि मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली यू हैव 1 minute 25 seconds. अगर आपका 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है MCQ, वेल एंड गुड. डेफिनेटली आपको ये एनालिसिस टेस्ट बैंक के वक्त ही करना है, इवैल्यूएशन के वक्त ही करना है, जो आप एग्जाम हर यूनिट के बाद ले रहे हो उसी वक्त करना है. सो अप्रोक्सीमेटली यू हैव 1 minute 25 seconds फॉर ईच MCQ एंड 20-30 minutes फॉर टास्क बेस्ड सिमुलेशन. अच्छा, BC के रिटन कम्युनिकेशन के लिए जो राइटिंग स्किल्स की जरूरत है, वो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है. BC के रिटन कम्युनिकेशन में कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है. इट कैन बी फ्रॉम फार ऑल्सो, इट कैन बी अ टॉपिक फ्रॉम ऑडिट ऑल्सो, इट कैन बी अ टॉपिक फ्रॉम रेग ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी टॉपिक फ्रॉम एनी कॉमर्स फील्ड, बट वो आपको BC के तरीके से लिखना है. ओके,
सो इट कैन बी एनीथिंग. नाउ जस्ट बिकॉज ये एक पेपर है, आपको ऐसा लगता है प्रोफेशनल एग्जाम का पेपर है तो आपको टेक्निकल जार्गन्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. डू नॉट यूज टेक्निकल जार्गन्स. मैं सामने से बोल रहा हूं, डू नॉट यूज टेक्निकल जार्गन्स. दिस इज अ वार्निंग. डू नॉट यूज टेक्निकल जार्गन्स. आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में लिखना है, एकदम सिंपल यूसेड लैंग्वेज के अंदर लिखना है, सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. डोंट यूज टेक्निकल जार्गन्स, बिल्कुल भी नहीं. एकदम सिंपल. ऐसा समझो कि किसी कॉमन मैन को आप इसे समझा रहे हो कि ये क्या चीज है, उसी लैंग्वेज के अंदर लिखिए. एकदम लेमन लैंग्वेज में यूज करना है, कोई टेक्निकल जार्गन यूज करना नहीं है. सेकंड टिप. थर्ड वन, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. शॉकिंग इजंट इट कि सर प्रेजेंटेशन कैसे, आप किस तरह से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो, किस तरह से बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर लिख रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स. सो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इवैल्यूएशन ये देख के भी किया जाएगा कि आपको कितने अच्छी तरीके से आप अपने रिटन कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर रहे हो. सो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन बीईसी रिटन कम्युनिकेशन. एंड लास्टली, length is not important. Even if it is a 10 mark question, it can be completed in a short length also. एक छोटा सा लेंथ में अभी आप अपना पूरा आंसर कंप्लीट कर सकते हो. सो लेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रिसाइसनेस इज. कंसेप्ट इज कि आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो गया, आपका प्रिसाइस टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर है. लेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट अगेन. एंड लास्टली, हैव फेथ इन योरसेल्फ. लास्टली, हैव फेथ इन yourself. ठीक है, आप अपने आप ऊपर भरोसा रखिए. Faith can move mountains, but we don't have to move mountains. We just have to move ourselves to achieve what we want. With that, I wish you all the best for your upcoming CPA examinations. Thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.